हाय एंड वेलकम टू एचएस कम्युनिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अच्छा था। अनुपमा की एंट्री हो गई है अनुज के घर पे, आद्या के घर पे, और अब खुशियां ही खुशियां होंगी इस घर में। प्रॉब्लम्स आएंगी, सब कुछ होगा, मगर अनुज का मन खुश रहेगा क्योंकि उसकी अनु उसके साथ है। अब उसको फिक्र की कोई बात नहीं है क्योंकि अनुपमा सब ठीक कर देगी। तो बढ़िया सा एपिसोड था, आगे भी मिलेंगे ऐसे बढ़िया एपिसोड। मगर अनुपमा के लिए कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं होगा क्योंकि वो अपनी सेवा में लगी रहेगी और सुनती रहेगी आद्या के ताने। खैर, आपके रिव्यूज आए हैं वो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं एबिगल के वीडियो से। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सब दोस्त को मेरा नमस्ते। आप सब कैसे हो? और धन्यवाद दोस्त मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए और मुझे हमेशा इनकरेजमेंट और अच्छी कमेंट्स करने के लिए। और अंजू मैम, आपका फीडबैक के लिए धन्यवाद हमेशा। आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अनुपमा के लिए बहुत दुख लगा कि अब उसकी जीवन में बहुत ट्रबल्स होने वाली है। Yeah, the episode starts with Anupama, sitting with Shruti and saying that, thank you that she gave permission. And then they were discussing that it was for Adya, to take care of Adya. And then they say, yeah, for all of us, Adya is important. See, now over here, Shruti looks very normal and, a very good person because her character is really very confusing. Excuse me. She sometimes suddenly becomes very possessive and jealous, and sometimes she sounds very understanding and cooperative. Anyway, so good that Anupama makes it clear that look, I only came to take care of Adya and I'm not going to come in between you and Anuj. She needs to say that clearly, and Anuj also needs to hear this again and again because this is the mess he put himself in. Good that because always Anuj is also taunting her, and now even Anupama needs to taunt him. And yeah, then he goes to get her, suitcase, and when he comes in, he'll say, oh, how strange this is, that you don't know where life takes you. And then Anupama says, yeah, it's right, after I left, I thought I'll never see your face again, but you do not know what lies ahead. And Anuj will say, yeah, things happen in a strange way. Don't know what God in God's narrative, I don't know what he's planned for us. And then Adya comes, and Adya again says, what is she doing here? Again she's misbehaving, and she'll say, get out. She'll tell Anupama. Then Anupama tells her, like we saw in promo videos. So back at the Shahs, Babuji and Bha are happy that Vanraj, agreed, and they were discussing that Dimpy and Tito will be happy and all that. And Kavya is also telling, Dimpy that she should enjoy the moment, but Dimpy wants to inform Anupama that she's getting married, and Vanraj stands there and is looking at them. So Vanraj just has a plan. I think Vanraj is going to do something that will show Tito in a way that he is only behind her property or something like that. Or he'll manipulate his grandson. So either of the two he's going to do to break the marriage between Dimpy and Tito. Yeah, so then Adya shouts at Anupama and asks her to get out of the house. And then Anuj is he's trying to stop her and trying to say something. And then Anupama lies and say, I came here for Shruti. It's because, yeah, you were right, because of me, Shruti got shot. So I'm guilty. I want to take care of her. I know the nurse can take care of her, but I will take care of her as an own and very good care. And then Adya will say, still, I don't need you. Then she'll say, no, I will cook food and everything and send you, but will you able to take care? No, you cannot take care, right? So I'm here, I'll take care, I'll make your mother well, and I'm only here to take care of Shruti. I'm not going to come in between or, cause problem between you, Shruti, and Anuj. I'm not going to take away your pops. Very good. Anupama saying all this in front of Anuj. He needs to realize where his priorities are. Always he's saying, my Adya, my Adya, my Adya.
So now here everything, Anuj needs to have his own medicine. And then he'll say, he'll ask Anupama why did she lie and say, that she only requested him. And then she says sometimes you have to tell lies to the children, stories to the children for them to believe. And half of it is true. It's because I came to take care of Adya only. I'm not going to come and start something new here, which is very good of her. And Anuj is like, yeah. Anuj is actually behaving very differently. Is because he thinks everything will go back to normal. That, oh, Anupama will come, and she'll start that lovey-dovey thing again with him. Because he still didn't realize what he's done. So he wants everything to go back to normal between him and Anupama. But Anupama is very good that she's keeping him in his place. And telling him that she's there for a responsibility once she finishes. So she'll tell him clearly, once Shruti and everybody are good, I will go from here. So then I think Adya will say, okay, you stay only for Shruti's sake. I'm saying okay. And when Anuj is going to take Anupama to the room, Adya calls him and then he goes. So yeah, now Toshu. Again, not enough this Adya is such a rude, misbehaving. This Toshu, that's his own blood mother, and how he is talking about her. Seriously, why is this series showing children in such a, bad way? He's talking so badly about his mom that, oh, she's going to go and now put her eyes on Anuj. And I think Anuj and Anupama are, joined together to put Shruti out and Adya. They're making them fools. What nonsense this boy is talking. Such children, actually, I'm disgusted to see such children, and I'm only watching the show mainly it's because of Anupama. There's a lot of things we learn from Anupama and we get inspired, we relate to her show, but these children are usually useless children. I know there might be such children in reality too, but this is like beyond reality. And how badly he says, and good Kinjal says that I'm ashamed for you to be my husband. Then why is Kinjal still with him if she's ashamed to have a husband like Toshu? And he's a useless fella. I don't want to talk about him. I just feel like going and giving him, one punch in his nose. I forgot to mention that the scene between Deepu and his mom again, his mom asks him what he's doing. He says he's like settling all the accounts. He wants to give his staff their paycheck and, settle all the merchants' checks too. And then his mom says, oh, you're just like Anu, always thinking about others. And he will say, yeah, I gone on my mom. And his mom will say, let's go back to India, and we have our house and farm and everything there. So Deepu will say, yeah, let's wait. And then his mom again will say to express his feelings to Anupama. Otherwise, he'll regret it later for not telling her. So, like I was saying even yesterday in my video, I'm doubting that they're trying the same track like they did with Anuj. How Anuj GK used to tell him, express his love, you never know, you'll be lucky, so I think they're trying to make a pair between Deepu and Anupama. But we fans are still hoping for Maan to reunite. I just don't know what the track is doing. Let's see where it goes. But I do not know if Anupama will accept Deepu's love for the love, or just because she would want Anuj to settle down, she will settle with Deepu. That is also an option. This is how I think, but I would stop watching Anupama if, the Maan couple does not get together. I would like to comment on this, panic attack of Adya, because I have gone through this and I do not think this is panic attacks. If you're going through trauma, you will not react in this way the way Adya is reacting. She's, pushing, she's yelling, screaming, throwing out anger. This is a psychological problem wherein, you lash out at people because you're mentally unstable. Now, I'm not saying it in a bad way. Many children go through this. However, I have gone through trauma myself. Being lonely at home, it took a toll on me, and I did not know what happened, but my children and my friend came to help me out. My children say I locked myself in the closet. It was dark, and then I fainted. They put me on the bed. My friend came. She took me to the shower. She gave me a shower. And then when I went to church also, I was behaving very weirdly. I didn't speak to anybody because I'm a person who speaks to everybody. I'm a very outgoing person. And my husband thought I was possessed.
So that is what is trauma. It takes a toll on your mind, and it closes you within, and it takes very long for you to come out of it unless you have people around, or people who will make you understand. And I came out of it because I have children and I have to take care of myself. So Adya's symptoms is not trauma, it's a psychological disorder. So this is what I felt. Anybody can disagree to me. So yeah, then Anuj takes Anupama to the room, and he says, "This is your room." She notices that he decorates the room with all jasmine flowers around, and then she'll say, "Yeah, thank you for decorating a room for for a guest." And then he'll say, "You don't have to be going on reminding me that you're a guest in this house." And then she says, "Yeah, I only came here for Shruti and Adya." And once everything is done, I will go from here. And he says, "Why are you always saying this?" And then she'll say, "No, I'm not telling you. I'm trying to tell myself that where is my place," which is true. Anupama, actually, there's no place for her in Anuj's house. That's his family. She notices all their photos. She notices those cards which Adya put, "I love you, mom, best mom." How much it must be hurting for her, right? And Anuj has his own family. Anupama is actually like a total stranger there. So, then she prepares, he tells her he has to go out for some work, and he says, "Bye, I'm going." And then she said, "No, don't say bye, you say I'm going and coming back." And that moment he remembers of their, moments together. And he says, "Okay, I'll be back." And then Anupama prepares some food and knocking on Adya's door, and she goes to, she doesn't open, so she gets worried. She just bangs the door. Adya again telling her, "You knock before you come. My pop does not knock. Also, walk in like that. Did you learn manners? First and foremost, did you learn manners, you little brat, Adya?" Why are they still? I know they're trying to reform the story and get her right, but the more they are showing her arrogance, the more people are getting irritated. We all fans are disgusted of Adya's character. She needs to stop this misbehavior. Yeah, and then Anupama says, "It's okay, you eat this food, I'll leave. I was knocking, but you didn't hear. Next time I'll take note." And by accident, she drops all her paint water down. Poor Anupama is so nervous over here. And she says, and Adya says, "Oh, I don't want to see her face or be next to her." How much of hatred? This is not trauma. She just basically hates one person, and she doesn't want to go beyond that hatred. And then it goes to the precap where again Shruti falls, and Adya also gets a panic attack. So let's see more drama. Thank you, Anju ma'am, and love you all. Good night. थैंक यू सो मच अभी आपके वीडियो के लिए। और सही कहा आपने श्रुति, बहुत कंफ्यूजिंग कैरेक्टर लग रहा है। और जो आपने एपिसोड को मेंशन किया है बहुत बढ़िया ढंग से, वो तो है ही अच्छा। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज जैसे आपने भी मेंशन किया है, बाकी सब ने भी किया है मेंशन, कि अनुपमा ने झूठ बोला। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था। तो अनुपमा ने तो झूठ बोला अपनी बेटी की तबीयत को देखते हुए, उसको सुधारने के लिए, उस घर में रहने के लिए। अनुज देखता रह गया, हक्का बक्का रह गया कि ये तो हुआ ही नहीं जो अनुपमा बोल रही है, बल्कि मैं गया था अनुपमा के पास कि तुम आओ और बेटी को ठीक करो। और अनुपमा उल्टा कह रही है कि मैं तो श्रुति की देखभाल करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि अनुपमा ने तो बेटी को ठीक करने के लिए झूठ बोला, क्योंकि बच्चे की भलाई उसी में है। तो क्या अनुज 5 साल पहले ये नहीं बोल सकता था कि आद्या, तुम्हारी मम्मी हमें प्रायोरिटी देती है, तुम बेटा गलत सोच रही हो, तुम्हारा पॉप कह रहा है ना कि ऐसा नहीं है। उस 8 साल की बच्ची को अगर इस बात के लिए कन्विंस करता तो क्या आद्या ठीक नहीं होती? तो अनुज ने आद्या को ठीक करने के लिए क्या एफर्ट किए वो समझ में नहीं आते हैं, सिवाय पैम्परिंग के। तो मुझे आज ये लेसन मिला कि कभी कभी बच्चों के साथ जो है उनकी भलाई के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जिससे बच्चे उसको समझने के बाद, यानी कि जब बड़े हो तब समझे, तो उनको अच्छा लगेगा कि उस समय माँ ने ये डिसीजन सही लिया। तो अच्छा था एपिसोड, और आपने भी बहुत अच्छे से इस चीज को भी एक्सप्लेन किया है, तो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज शो में अनुज श्रुति अनुपमा में बातें हो रही थी कि श्रुति अनुपमा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में आई हूँ, तुम्हारे बीच में नहीं आई, और जैसे ठीक हो जाएगी आद्या, बस मैं उसी समय चली जाऊँगी यहाँ से। और
उस पे उसने ये भी कहना कि मैं बहुत घरेलू, यानी बहुत सी उनकी बातें हुई। तीनों ने उसने कहा श्रुति ने कि हम तीनों के लिए अनुपम यानी आद्या इम्पोर्टेंट है। और पहली बार उसने तीनों को किया था, तो अनुज कह रहा था हम दोनों के लिए आद्या इम्पोर्टेंट है, यानी श्रुति और अनुज के लिए। बट अभी देखते हैं इसका वो फिर अनुज जैसे फिर वो रूम में सामान लेने जाती है, तो यानी डोर पे सामान लेने जाते, बैग लेने जाती है, तो आद्या ने देख लिया होता है बातें उन दोनों की। तो उसने वो कहती है अनुज से कि कुछ कहना चाहती कि कपड़े सर पर कुछ कहना चाहती। तो अनुज कहते हैं कि मैं लाइन ड्रॉ नहीं करूँगा, जो कभी नहीं किया वो अभी भी नहीं करूँगा। और उसके बाद देख लेती आद्या, देख लेती तो फिर आद्या की कि यहाँ पे क्यों आई हो, गेट आउट वगैरह जो भी। तो अनुपमा ने झूठ बोल के आद्या को मना लिया, अपनी बातों में मना लिया कि मैं यहाँ श्रुति के लिए आ रही, कान्हा जी की सौगंध भी खाई, और मैं तेरे पापा और श्रुति के बीच में नहीं आऊँगी। और जैसे ही ठीक हो जाएगी श्रुति तो मैं उसी समय चली जाऊँगी। तो मान गई है श्रुति के लिए, आद्या कुछ भी कर सकती है, तो आद्या भी मान गई है। और फिर उसके बाद अनुपमा आद्या के लिए दरिया लेके जाती है, तो फिर उसकी वही बदतमीजी हम देखते हैं। यहाँ अनुज का एक है कि उसने जो रूम में फूल बिछाए हैं, यानी फूल सजा के रखे, मोगरे के फूल। और आपका वो वीडियो बहुत अच्छा था अंजू जी, आपने कहा कि फूल बिछाने से, मोगरे बिछाने से कुछ नहीं होगा। अनुज को तो है ना अपनी उस गलती का एहसास, जो उसने 5 साल पहले उससे जो इल्ज़ाम लगाए, जो उसको बहुत कुछ कह दिया, तो उस बात को जब तक वो गलती नहीं मानता, जब तक उस गलती का एहसास नहीं होता, अनुपमा को कहता नहीं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की अनुपमा, वो 5 साल पहले गलती मेरी थी, इतनी छोटी सी बात पे मैं बहुत कुछ बिगाड़ गया मेरी वजह से ये। तो यहाँ तब शायद कोई बात बन सकती है, नहीं तो हम लोग अनुज का कब से वेट कर रहे हैं। ये तो बहुत दिनों से हम लोगों की शिकायत है, क्योंकि छोटी का पर इल्ज़ाम लगाना अनुपमा के लिए बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एक पिता का दर्द वो तब भी समझती थी। माया वाले ट्रैक में भी अनुपमा ने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि आप गए थे ना, तो एक पिता गए थे, पति नहीं गए थे। और पिता बोल रहा ठीक है, वहाँ तक ठीक था, उससे अनुपमा ने सफाई भी दी थी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। पर उसके बाद जो अनुज बोलते गया, अनुपमा अवाक रह गई, अनुपमा को बोलने का मौका ही नहीं दिया, बस वही बोले जा रहा था। यानी उसने उसको उसके नाम पूरी प्रॉपर्टी कर दी, और मैं 26 साल का प्यार में बावला हूँ और तुम, इसलिए मैंने बहुत सी बातें ऐसी कही ना, तो वो अनुपमा के दिल को चुभ गई, इसलिए अनुपमा ने घर छोड़ा। ये बात अनुज को अनुपमा तो नहीं बताएगी, क्योंकि अनुपमा कभी गिल्ट पे डालना नहीं चाहती। अरे वो ऐसी बंदी है कि वो श्रुति के साथ गोली लगना श्रुति के लिए तो वो जिम्मेदारी नहीं है उस बात के लिए, फिर भी उसका गिल्ट अपने पे ले रही है, उसकी मैंने उसका इल्ज़ाम अपने पे ले रही है। तो वो क्या अनुज को इस इल्ज़ाम में फंसाएगी, वो तो यही सोच रही। अनुज जो बोल गए, दिल से बोल गए, और अभी मुझे अनुज को तकलीफ नहीं देना, वो तो ये मान के चल रही है कि अनुज को आप दर्द नहीं देना, अनुज को आप तकलीफ नहीं देना, घुटन में भरे ज़िंदगी नहीं देना, वो तो ये मान के बैठी। तो इसलिए अनुपमा कभी नहीं कहेगी, हाँ कभी गुस्से में निकल जाएगा और बात अलग है। पर आज जो हुआ, कल मुझे पूर्वी जी के ऑडियो में वो बात बहुत अच्छी लगी कि सेम वही होता था जब शाह हाउस जाती थी, कभी भी जाती थी, जिस समय बुलाते थे तब चल जाती थी। कोई किसी के भी रीजन से कोई भी काम है, पूरे इतना परिवार में कोई ना कोई, तो आज सेम अनुज के बुलाने पे भी अनुज ने भी आधी रात को अनुपमा को बुलाया, अनु को बुलाया, मिलने के लिए बुलाया। तब फिर ये कहाँ से न्याय हो जाता है। ये बात मुझे सही बात है कि सेम वही है। हम तो सेम आज अनुज को वो भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि अनुपमा आज एक्स पति के घर अब मेरी बेटे के लिए आ गई, और अपनी सफाई भी दे रही है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो क्या ये छोटी छोटी बातें रियलाइज़ नहीं करेगी अनुज को? क्योंकि आज उसे ये भी कहा कि मैं बीच में नहीं आऊँ, मैं बीच में नहीं आई, घर में आई, बीच में नहीं आई। छोटी को भी कहा कि मैं तेरे पापा और तेरे भी उनके बीच में कभी नहीं आऊँगी, कभी तोड़ूंगी नहीं उनका रिश्ता, जो भी उसने कहा। तो क्या अनुज को ये बात रियलाइज़ नहीं थी कि ये सब अनुपमा उस समय भी करती थी? आज उसने ये बात भी कही कि आप तो जानते हो ना कि मैं किसी को ज़रूरतमंद है और जिसको ज़रूरत है उसकी भी मदद करती हूँ। आप तो जानते हैं मुझे अच्छे से कि मैं उसने जब श्रुति के लिए कहा था कि मैं उसका भी ध्यान रखूँगी, तो अनुज कहता है कि तुम्हें ज़्यादा का क्यों करना है, वो उसका ख्याल मैं रख सकता हूँ, श्रुति का ख्याल मैं रख सकता हूँ, तुम सिर्फ आध्या के लिए मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ। तो तब वो कहती है कि मैं तो हूँ ऐसी, और उसको गिल्ट भी अपने लिए मानती है। तो जब ये बात है तो फिर अनुपमा का वो वाला बात भी उसको याद आना चाहिए कि 5 साल पहले भी तो अनुपमा ऐसी थी, तो मैंने गलत कहा।
ये एहसास जब तक नहीं होगा ना तब तक मान मिलन के कोई चांस ही नहीं लगते, क्योंकि अनुपमा ऐसे ही नहीं, क्योंकि आज तो उसने कसम भी खाई है। जब तक अनुज को एहसास नहीं होता, और अभी अनुपमा तो खुद नहीं बोलेगी भाई, उसके अगर मन में आ भी गया ना तो यही कहेगी कि नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है, श्रुति से प्रॉमिस किया है, मैंने आध्या से प्रॉमिस किया। तो यहाँ आध्या अगर रोके तो रोके, श्रुति गिव अप करे तो करे। अगर ये दोनों ने आपने जिद नहीं छोड़ी या फिर अपने से में ही रहे, ठीक हो जाएगी, शायद अनुपमा को माफ़ भी कर देगी अनुपमा, और आध्या में अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाएगी। फिर भी अगर उसका मन श्रुति में रहेगा कि श्रुति ने नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो तो मान मिलने के संभावना कम है। यहाँ दोनों ही कर, क्योंकि अनुपमा ने कसम भी कही है कराजी की। तो यही लगता है। भाई रही बात तोशु की, तो तोशु आज वाहियत बातें कर रहा है, बहुत ज़्यादा वाहियत घटिया बातें। ये बंदा नहीं सुधरने वाला। आपने कहा कि राखी दवे आनी चाहिए, तो राखी दवे अगर आ भी गई तो क्या, क्योंकि राखी दवे ने खुद अपने पति को चीटिंग की, उन्होंने भी चीटिंग, तोशु जैसी चीटिंग की थी, तो उन्होंने भी अपने पति को माफ़ कर दिया था, यानी साथ उसी के रहती थी। और क्योंकि बेटी को पिता का प्यार मिलना चाहिए, तो सेम ये भी कर रही है, किंजल भी कर रही है। तो क्या राखी दवे उसको इस तरह की 2 बात सुनाएगी? वो क्या किसी की बातें समझता है? यहाँ अगर कोई सबक सिखा सकता है तो तोशु को परी और किंजल, जो धमकियाँ बात लड़ाई करती है, धमकी देती है, पर छोड़ के अगर जाए ना एक बार परी और ये, तो ये सीधे आ जाएगा। यहाँ ये होगा कि खुद किंजल ने स्टैंड लेना चाहिए। अभी वो डायलॉग में होता है कि पत्थर हो कंकड़ हो तुम दाल चावल में, ये सब बोलते हैं, ये सब बातों में होता है पर करते नहीं ना, इसलिए तोशु को साथ ये है, क्योंकि उसको माफ़ कर दिया जाता है हर बार। अभी मिल जीतना तो अनुपमा को कंपटीशन। तो यहाँ आज एक बार बड़ी कॉमन अजीब सी लगी, जैसे अनुपमा जैसे रुख ले बोलती कि मैं सब संभाल लूँगी, यानी इसका भी, श्रुति का भी ध्यान रखूँगी, अनुपमा आद्या को भी ये करूँगी। तो यहाँ पे जैसे वो होता है कि अनुज फ्री हो जाता है, अनुज रिलैक्स हो जाता है, और अनुज कहता है कि मुझे काम पे जाना है तो मैं जाता हूँ। तो वहाँ अनुपमा कहती जाता हूँ नहीं आता हूँ बोलिए, तो कहते हाँ आता हूँ। और उसके बाद और ये बात है कि रिलैक्स हो गया। तो यहाँ आज मुझे फिर वो बात लगी कि शाह उसमें भी सेम होता था। अनुपमा जैसे वहाँ काम में लग जाती थी, सब लोग रिलैक्स हो जाते थे और अपने अपने काम में लग जाते थे, कोई भी एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं लेता था घर के लिए, ना ही कभी किंजल ने लिया, ना ही कभी काव्या, ना कभी कोई और हमेशा ये एक जताते थे, जैसे बुला लेते थे, फिर बापूजी भी कहते थे बेटा माफ़ करना, मैं तुझे आना पड़ता है। और काव्या भी बोलती थी अनुपमा तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, सब लोग किंजल अपने अपनी जगह। तो यहाँ अनुज ने भी वही कहा कि यानी वही बात हुई ना। तो यहाँ पे अनुपमा को समझ कौन रहा है? सबसे बड़ी बात है कि अनुपमा को समझ ही कोई नहीं रहा यहाँ कि अनुपमा को क्या दर्द है, कि इसके बाद अनुपमा को जाना पड़ेगा। ये सब यानी कैसा अभी ये वही हालात पैदा हो रहे हैं जैसे शाह हाउस में होता था, वही हालात अभी यहाँ पे कपड़िया में आध्या के लिए हो रहे हैं। तो यहाँ पे अनुज को रियलाइज़ होना ज़रूरी है। और रही बात कंपटीशन में, तो ये सब अगर इतना रिलैक्स हो जाएंगे तो अभी जैसे ये श्रुति का कि रिकैप में दिखाते कि श्रुति गिर जाती है, तो क्या मैं पूरा हॉस्पिटल का जो सेटअप लगाया होता है उस रूम में पूरा मॉनिटर और ये सब उसको जो कहते हैं श्रुति के लिए लगाया जाता है, तो वो सब तो क्या एक बेल लगाने की प्रोविज़न नहीं थी क्या? एक बेल लगा नहीं सकते थे कि श्रुति ने बेल बजा के बुलाना था उसको अगर पानी पीना था? ये एक्स्ट्रा क्यों? यहाँ ये छोटी छोटी गलतियाँ क्यों? क्योंकि श्रुति गिर जाती है और कहीं और लग जाती तो क्या मुसीबत बढ़ाती है? यानी अनुपमा की लाइफ में मुसीबत ही बढ़ाना है। अनुपमा भी कंपटीशन में जो हिस्सा लेगी ना, तो यहाँ कैसे वो करेगी, यहाँ पे बहुत मुश्किल जाएगा। वो कैसे सर्वाइवल करेगी, कैसे इन लोगों को इनकी मुसीबतें, ये अक्षय बकवास जो हरकतें, अनुज को भी काम पे अगर नहीं आती अनुपमा तो क्या अनुज ऐसे छोड़ के चले जाता? हमेशा तो बहुत बार घर पे दिखता है अनुज। तो यहाँ मुझे अजीब सा लगता है कि सब ऐसा रिलैक्स हो जाता है अनुपमा को देख के, तो उसके लिए कोई नहीं सोचता। तो ये कंपटीशन में भी है। रही बात आज मुझे बीजी की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बीजी ने हाँ तो ये कह रहा है, ये यशदीप कह रहा है कि वो उसके मन में जो भी फीलिंग है तो बताना नहीं चाहता, क्योंकि जानता है सच्चाई कि अनुपमा के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है और क्यों किसी को हर्ट करे और क्यों, यानी जाहिर सी बात है। तो यहाँ बीजी का थोड़ा आज नहीं अच्छा लगा कि वो अनुपमा को प्यार जरूर करती है, सोचती है, पर यहाँ क्यों चाहती है मन हल्का करने के लिए अनुपमा
कि फिर क्यों ऐसे होते जा रहे हैं। तो यहाँ आज थोड़ा सा बिजी का भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि ज़रूरी नहीं है ना कि तुम्हारा मन हल्का करने के लिए किसी और को भारी महसूस होने दे, और या फिर उसको भी गिल्ट होगा कि मेरी वजह से आज दिल टूट गया है यशदीप का, जिन्होंने मेरे लिए इतना किया। बीजी की भी उम्मीद बढ़ जाती है, फिर ऐसे में होता है ना। तो यहाँ थोड़ा सा वो लगा है मुझे, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। बहुत सही से समझा है वर्षा आपने अनुपमा के कैरेक्टर को। वो तो किसी दूसरे को यानी कि किसी बाहर वाले को गिल्ट में नहीं डालती है, ये तो अनुज है। अनुज को कैसे गिल्ट में डालेगी ये सब ताने या जो बाकी लोग करते हैं वो बातें सुना के। सही कहा आपने, वो तो श्रुति का जो कांड है, जो गोली लगना है, वो भी अपने ऊपर लेके बैठी हुई है। तो बहुत अच्छा रिव्यू है आपका और बहुत बढ़िया लगा आपकी बातें सुन के। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज अनुपमा का श्रुति से बातें करना और अपनी बेटी के लिए घर में रहना, ये सब देखकर सुनकर अच्छा तो लगा। आज अनुपमा ने कहा कि मैं जहाँ सिर्फ आद्या के लिए आई हूँ, आप दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। अनुपमा बेशक इन दोनों के बीच में ना आए, बट कान्हा जी इन दोनों को बार बार एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे। उधर तोशु की बातें सुनी तो सच में इतना घटिया बेटा, जिसे अपनी माँ पर शर्म आ रही है। वो दिन भूल गया जब जब ये तोशु मुसीबत में पड़ा है, तब अनुपमा ने अपना माँ होने का फ़र्ज बिल्कुल निभाया है। सच पूछो तो आज मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो हमारे मान अलग हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन शाह वालों की वजह से ही हैं। जितना मर्जी अनुपमा इन शाह वालों के लिए कर ले, बट शाह वाले हमेशा इसे गालियाँ ही देते हैं। और किंजल, बापूजी, काव्या और डिम्पी, इन सब से भी कुछ हैंडल तो होता नहीं है। जब देखो अनुपमा को अपनी मुसीबतों में डाल देते हैं। ये केंजल तो कुछ भी नहीं कर पा रही है, बस तोशु को 2-4 बातें सुनाती है और चली जाती है। आज अनुपमा का आद्या से बातें करना कि मैं जहाँ श्रुति के लिए आई हूँ, जब वो ठीक होगी तो मैं जहाँ से चली जाऊँगी। अनुपमा बहुत अच्छी माँ है, बट ये तीनों बच्चे उसे कुछ समझते ही नहीं हैं। आज जब अनुपमा ने ये सब कह रही थी तो अनुज को कहना कि तुम ये सब क्यों कह रही हो। उसे पता है कि अगर मैं ये नहीं बोलती तो वो अपने पापा से नाराज़ हो जाती और उनसे गुस्से से बात करती। आज जब अनुज ने अपनी अनु को कहा कि ये तुम्हारा कमरा है, तो अनु देखती है कि चारों तरफ मोगरे के फूल रखे होते हैं। आज मान का सीन बहुत अच्छा लगा। जब अनुज कहता है कि मैं जाता हूँ, तो अनुपमा कहती है कि आता हूँ। कुछ भी हो, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट मान का आ ही जाता है जो हमें खुश कर जाता है। उधर अनुपमा जब जाती है आद्या के कमरे में, तो आद्या का बर्ताव अपनी माँ के लिए बहुत ही घटिया था। कैसे वो कह रही थी कि आपको लॉक करके आना चाहिए था। तब भी अनुपमा ने अपनी बेबली को सॉरी कहा। कौन से पेरेंट्स ऐसे अपने बच्चों को सॉरी कहते हैं, जबकि गलती बच्चे करते हैं। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अब अनुपमा अपने अनुज के घर आ गई है। अब इस आद्या की नफ़रत भी दूर करेगी और इसका गुस्सा भी दूर करेगी, और उधर अनुज को भी एहसास होगा कि मैंने क्या क्या अनुपमा को कहा है, और अनुपमा अपनी बेटी का दिल ज़रूर जीतेगी। जिस तरह आज उसने अपनी माँ के लिए दरवाज़ा बंद किया, वैसे ही ये लड़की अपनी माँ को समझेगी और अपनी माँ को वापस जाने नहीं देगी। उधर श्रुति का पानी के लिए गिरना और उसका इल्ज़ाम भी अनुपमा पर लग जाना अच्छा तो नहीं लगा, बट अनुपमा धीरे धीरे सब संभाल लेगी। आज फिर से मुझे दीपू और बीजी की बातें कुछ अच्छी नहीं लगी। जब बीजी को भी पता है कि अनुपमा दीपू को सिर्फ अपना दोस्त मानती है और कुछ नहीं, तो बट अनुपमा के दिल में सिर्फ अनुज है और अनुज ही रहेगा। तो फिर बार बार ये बातें करके अनुपमा की और नई मुसीबत में डालने की बात क्यों करते हो। ये सुनकर वो फिर से परेशान हो जाएगी जब दीपू उससे बात करेगा। एक तरफ उसकी मुसीबत कम नहीं होती, दूसरी तरफ तैयार हो जाती हैं। बस थैंक यू अंजू मैम, आज इतना ही कहना था। सबसे पहले तो आपका स्वागत है कुसुम जी एचएस कम्युनिटी में, और आज आपका पहला ऑडियो है एचएस कम्युनिटी के इस आवाज में, तो वेलकम। और सही कहा आपने कि केंजल सिर्फ बातें ही सुनाती है, करती कुछ नहीं है। हम वेट कर रहे कि केंजल कुछ करे, जैसे वो पहले करती थी, तोशु को सबक सिखाती थी, तभी रोता रोता तोशु उसके पैरों में गिर के माफी भी मांगता था। तो वैसे वाली केंजल अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, अब प्रैक्टिकल केंजल दिखाई दे रही है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करती है। बाकी आपका ऑडियो अच्छा था, आगे भी इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ।
आज का एपिसोड की शुरुआत अनुपमा और श्रुति की बातचीत से होती है। अनुपमा कहती है कि ये फैसला लेना आपके लिए आसान नहीं है, तो श्रुति भी कहती है कि आपके लिए भी आसान नहीं होगा। सही बात है। श्रुति के लिए तो अनुज है, आद्या है। अनुपमा के लिए कौन है? आद्या नफरत करती है और अपनी माँ की बेइज्जती करता है, और अनुज अनुपमा की बेइज्जती होता देखता रहता है। अनुपमा कहती है कि मैं सिर्फ छोटी के लिए आई हूँ, बीच में नहीं आऊँगी, छोटी के ठीक होते ही चली जाऊँगी। अनुपमा की नेकी, उसका प्यार, उसका समर्पण देखकर मुझे तो कभी कभी गुस्सा भी आता है। इस घर में रहना अनुपमा के लिए कितना मुश्किल होगा, ये कोई नहीं समझ रहा, यहाँ तक कि अनुज भी नहीं। एक तरफ अनुज, उसका प्यार, दूसरी तरफ आद्या, उसकी बेटी, जो उसे नफरत करती है, और तीसरी तरफ श्रुति, जिसको हम ही नहीं समझ पाए तो अनुपमा अनुज क्या समझेंगे। उधर जब तोशु को पता चलता है तो वो अपनी नीच, गंदी और टुच्ची हरकतों पे आ जाता है। अपनी माँ को बैड न्यूज़ बोल रहा है। ये कैसा बेटा है जो माँ के बारे में इतने गंदे वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, माँ के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। ये वही तोशु है ना, जब इसको पैरालिसिस हुआ था तो यही अनुपमा अपना घर छोड़कर बेटी छोटी को माया और अनुज के पास छोड़कर हॉस्पिटल जाती थी, कभी घर जाती थी। काश ना जाती, मरने देती इस जहरीले इंसान को। और जो किंजल भले होने का नाटक कर रही है, अनुपमा इसी की वजह से हमेशा मुसीबत में आई है। 5 साल पहले भी किंजल की गलती की वजह से अनुपमा का घर टूट गया था। कभी किंजल, कभी परी और कभी तोशु, जीने ही नहीं दिया अनुपमा को। अब तोशु अनुपमा के खिलाफ जहर उगल रहा है। तोशु, यही जहर तुम्हारे लिए घातक होगा। शेम ऑन तोशु। तोशु कह रहा है कि मुझे माँ बोलते हुए शर्म आती है, तो किंजल कहती है कि मुझे पति बोलते हुए शर्म आती है। अरे शर्म आती है तो छोड़ दो ना तुम दोनों। तोशु अपनी माँ को छोड़ दे और किंजल अपने पति को। है हिम्मत दोनों में? नहीं है। उधर अनुपमा के सामने आद्या आती है और अनुपमा को देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे जाने के लिए कहती है। लेकिन देखो माँ की ममता, यहाँ भी झूठ बोल गई, क्योंकि अनुपमा का मकसद अपनी बेटी को ठीक करना है और बेटी की जान श्रुति में बसती है। तो अनुपमा कहती है कि मैं तो श्रुति के लिए आई हूँ, मेरी वजह से उसको गोली लगी थी, ठीक होते ही चली जाऊँगी। वारी माँ की ममता, इतनी नफरत सहकर भी माँ बनना नहीं छोड़ा। आद्या जैसी है वैसी है, लेकिन अनुज को क्या हो गया? क्यों नहीं बोल पाता वो अनुपमा के लिए? अनुज अनुपमा को कहता है कि मैं आद्या के लिए तुम्हें लाया हूँ। नहीं, गलत, तुम श्रुति के लिए भी लाए हो। नहीं तो तुम श्रुति से पूछते ही क्यों? ये घर श्रुति का नहीं है, अनुज का है। अनुपमा की अपने आप में ही कमरे में स्ट्रगल चल रही है। आखिर है तो इंसान ही, कैसे बीते कल को याद नहीं करेगी। कान्हा जी किस उलझन में डाल दिया अनुपमा को। उधर बनराज के गेम प्लान से सब बेखबर हैं और टीटू और डिम्पी की शादी से खुश हैं, चाहे बाबूजी हो, बा हो या काव्या। इन तीनों को ये नहीं पता कि बनराज एक नंबर का धूर्त, दगाबाज और नीच प्रवृत्ति का इंसान है। अपने मतलब के लिए किसी की भी ज़िंदगी खराब कर सकता है। अनुज अनुपमा को गेस्ट रूम में लेकर आता है। चारों तरफ मोगरे के फूलों से महक रहा है कमरा, लेकिन अनुज को ये नहीं पता कि मोगरे के फूलों से ज़्यादा आद्या की नफ़रत, अनुज और श्रुति का एक साथ रहना, और सबसे ज़्यादा अनुज के दिए हुए जख्म जो उसने 5 साल पहले दिए थे, वो अनुपमा को ये फूल कैसे महका सकेंगे, कैसे अच्छे लगेंगे। आज अनुपमा को गिल्ट में डालना वाला अनुज है। ना तो अनुज अनुपमा को समझा सका कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ना आद्या को समझा सका कि तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है। उधर यशदीप और बीजी की बातचीत हो रही है। बीजी यशदीप से प्यार का इजहार करने को कहती है, लेकिन यशदीप कहता है कि मैं अनुपमा जैसी दोस्त को नहीं खोना चाहता।
लेकिन बीजी कहती हैं बहुत सारी प्रेम कहानी इसलिए अधूरी रह जाती हैं कि हम अपने दिल की बात नहीं कह पाते। लेकिन मुझे लगता है कि यशदीप को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि अनुपमा उसे सिर्फ दोस्त मानती है और अनुपमा का प्यार सिर्फ अनुज है। अगर यशदीप ये बात अनुपमा से कहेगा तो अनुपमा और हर्ट हो सकती है। उधर अनुपमा आद्या के कमरे में दलिया लेकर जाती है, लेकिन जब आद्या दरवाज़ा नहीं खोलती तो अनुपमा को घबराहट हो जाती है और वो अंदर आ जाती है। लेकिन फिर वही आद्या की बदतमीजी, वो उतर जाती है अनुपमा पर और उसको मैनर सिखाने लगती है। वाह आद्या वाह, आद्या को क्या दोष थे। जब तोशु जो अनुपमा की कोख से पैदा हुआ वही माँ को गालियाँ दे रहा है। अनुपमा के भाग्य में बच्चों का सुख शायद लिखा ही नहीं है। अब हर दिन अनुपमा के लिए परीक्षा का होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके बहुत बढ़िया रिव्यू के लिए। आपने तोशु के लिए बहुत सही कहा है और कहीं ना कहीं अनुज के बारे में जो आपने कहा है उसमें जरूर मैं ऐड करना चाहूंगी कि इस समय अनुज जो श्रुति से बात करके अनुपमा को यहाँ पे लाता है वो एक डरा हुआ इंसान है। वो इसलिए है क्योंकि वो सिचुएशन को संभालने के काबिल नहीं है। एक्चुअली पहले तो सिचुएशन संभाल लेती थी क्योंकि अनुपमा साथ में होती थी। उससे पहले बिजनेस के अलावा कोई और सिचुएशन आई ही नहीं। अगर आई तो मुक्को वाली, वो भी वो संभाल नहीं पाया। तो फैमिली सिचुएशंस वो संभाल ही नहीं सकता है, जितना मैं अनुज को समझी हूँ। यहाँ पे भी उसको पता है कि श्रुति है, आद्या है। आद्या के लिए वो अनुपमा को यहाँ पे लाना चाहता है। श्रुति का तो ध्यान रख लेगा, एक बीमार इंसान का ध्यान रखा जा सकता है, मगर मेंटली सिक पेशेंट का ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल होता है, और जब दोनों बीमार हों। तो आद्या के लिए वो जो एग्जाम्पल भी दिया है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि अनुज ने श्रुति के लिए तो अनुपमा को नहीं बुलाया है, बल्कि आद्या के लिए बुलाया है। श्रुति की परमिशन इसलिए चाहिए कि सिचुएशन बिगड़ सकती है, क्योंकि श्रुति अगर हाँ करेगी तो आद्या अनुपमा से जो व्यवहार करती है उसमें थोड़ा सा कम करेगी, क्योंकि श्रुति कहेगी कि मैंने अनुपमा को बुलाया है, हमारी मर्जी से अनुपमा आई है। तो ये वाला एंगल है यहाँ पे जो मैं समझ पाई हूँ। बाकी आपका भी एंगल गलत नहीं है, क्योंकि ये भी लोगों को लगता है। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्रू जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। कल का रिव्यू देखा अनुज जी, माया से भी गई गुजरी निकली ये श्रुति, दे दी अनुज को सीधी चेतावनी। माया को 100% पता था कि अनुज उसका कभी नहीं होगा, इसलिए माया अनुज को पाना चाहती थी। जब सच समझ में आया तो उसने अपने पापों का प्रायश्चित भी कर लिया। लेकिन इस पागल को क्या लगता है शादी करके ये खुशी खुशी रहेगी? हट, जिस आद्या को ये ट्रम्प कार्ड की तरह यूज़ कर रही है, उसी से पहले फेड अप करेगी, फिर अनुज से। जब अनुज के घर पर रहेगी तब देखेगी कि अनुज शराब पीता है, तब अनु क्या करती है वो देखने में मज़ा आएगा। श्रुति को आज तक अपने माँ बाप को याद करते नहीं देखा, उनके लिए आंसू बहाते नहीं देखा, पर शादी के लिए मरी जा रही है। अनु ने श्रुति से बात कर ली। आज का एपिसोड शुरू हुआ, अनु ने श्रुति से बात कर ली। वाह अनु, घर में आई हूँ, बीच में नहीं आऊँगी। हाँ श्रुति, तीनों मजबूर हो। ये है हमारी अनु, जो दुश्मन हो या दोस्त सबकी मदद करती है। खुद दुख सहेगी लेकिन दूसरे को खुशी देती है। हाँ अनु, अपने हाथ से काढ़ा पिलाकर श्रुति को ठीक कर देना। अनुज को हंसी आ रही है। ये तोशु सबसे घटिया नंबर 1 है। तुम खुद वैसे हो तो तुम्हारी सोच भी अपने बाप की तरह घटिया ही है। छी, सही कहा किंजल ने कि उतनी शर्म, मुझे अपनी माँ पे शर्म आती है, उतनी शर्म नहीं आती होगी जितना मुझे तुम्हें अपना पति कहने में शर्म आती है। वेल डन किंजल, तुम्हारी माँ के नहीं, तुम्हारे कर्म घटिया है लूजर। ये लूजर को डाइवोर्स क्यों नहीं देती? अनु के कहने से पहले ही अनुज ने कहा कि मैंने लाइफ में
आज तक वो लाइन कभी क्रॉस नहीं की, अब भी नहीं करूँगा। हाँ कपाड़िया जी, सब कुछ अजीब हो गया है। आप दोनों का प्यार ही बहुत बड़ा सरप्राइज है जो अब कान्हा जी ने मेरिकल किया है, जो आ गई है, मेरिकल करने आ गई है। जो हम इंसान सपने में नहीं सोच सकते वो कान्हा जी सोच लेते हैं। चलो थोड़ी ही सही तमीज से बात की। वाह अनुज, वाह अनु, जाओ और श्रुति जी से पूछ लो। आद्या को कहा अनु ने। तुम्हें नहीं होगी आद्या, तुम्हें नहीं होगी, लेकिन तेरे बाप को जरूरत है। अनु ने सच में पागल है, इतना बड़ा इल्जाम अपने सर लेने की क्या जरूरत है। इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खुद को तो पहले संभालो, बाद में श्रुति को संभालना। खुद तो कुछ कर नहीं सकती, दूसरे कर रहे हैं तो उन्हें भी नहीं करने देना। अनु ये सब अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब बोल रही है और अनुज आज भी बेबस होकर सुन रहा है। अनुज कभी कुछ बोलेगा या नहीं? वाह अनु, क्या कहानी बनाई है। जिस दिन तुम्हें अपनी मम्मी की वैल्यू समझ में आएगी तब तुम खून के आंसू रोओगी। अनुज, आपकी अनु बहुत समझदार है। अनु, तुम्हें खुद पर इल्ज़ाम लेने में क्या मज़ा आता है? बस करो यार, खुद पर ब्लेम करना। अनु समझा कर थक चुका है। अनु की उलझन देखकर बुरा लग रहा है। ये वही तस्वीर है जो श्रुति ने बदली थी। हाँ अनु, पहले जाने के लिए आई थी, अब रहने के लिए आई है। अनुपमा को यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। बापूजी, आपका बेटा और आपकी बीवी और आपका पोता तीनों कभी नहीं सुधरेंगे। अरे अरे कुछ नहीं तो तोशु को फ्रीडम नहीं मिल रही है उसे पार्टी करने का, क्योंकि अनुपमा रहती तब ये आराम से बाहर अय्याशी करने जाता था, पर अब फिर से घर के काम करने पड़ रहे हैं, इसलिए बौखलाया हुआ है। क्या कह रहा है? शादी तुड़वाने गई है अनु? अनु को शादी तुड़वाने की क्या ज़रूरत है? ऐसी शादी जिसमें कोई खुश नहीं है। आद्या भी सिर्फ कुछ दिन ही खुश रहती, उसके बाद वो भी हर दिन घुटती रहती। सब इतने सेल्फ सेंटर्ड कैसे हो सकते हैं? वेल डन किंजल। हाँ बा, घर जमाई की भी इज्जत करना चाहिए। देखते बा कितना मान सम्मान करती है। आप लोग अनुज अनु को आद्या के लिए लाया है तो अनु श्रुति का काम क्यों कर रही है? अनुज खुद बोला, फिर भी गिल्ट अनुज के लिए बुरा लगता है, लेकिन अनुज ने खुद ये सब को पाल के रखा है। अनुपमा, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया है। अनुज आज तक कुछ समझ नहीं पाया। कम से कम अनु ने चालाकी दिखाकर कन्विंस तो कर लिया। सच बच्चों को बातें मना कर ही चीज़ें समझानी पड़ती है। से सीधे उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। इसलिए इस लड़की को कितना एटीट्यूड है। ये लाइफ उसको अनु की वजह से ही मिली है, नहीं तो पड़ी रहती अनाथ आश्रम में। अनुज ने मोगरे से अनु का रूम डेकोरेट किया है। तुम इस घर में मेहमान हो, ये बार बार जताना जरूरी है? आपको नहीं, अपने आप को बता रही हूँ। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने। अब ये मोगरे की सुगंध भी अनुपमा को अनुज की वो फील नहीं दिलाएगी, क्योंकि उसके मन पे जो घाव है वो अभी तक भरा ही नहीं है, जो बातें अनुज ने कही थी। ब्यूटीफुल सिंपल मान डिस्कशन। आद्या के मन में नफरत कम हो जाए। मुझे काम के लिए बाहर जाना है, आप जाइए। श्रुति छोटी की चिंता मत कीजिए। और तुम्हारी? आप है ना कपाड़िया जी, अनु की चिंता करने के लिए आता हूँ। अनु का कहना ब्यूटीफुल सीन था। बीजी, सच टीनेजर नहीं है। प्रपोज की एक उम्र होती और अनु से प्यार करती है। ये यशदीप को बता चुकी है। जब अनुज अनुपमा
उतने सालों से सेपरेट है, किसी को कुछ नहीं हुआ। अब देखो, जब भी अनुज अनुपमा एक साथ रहने लगे, अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, सारा हिलने लगा। मान के प्यार में ताकत तो है, तभी सब डर गए हैं। बीजी ये गलती मत कीजिएगा, कहीं जब ऐसा ना हो कि जब तक दीपू जी अनुपमा से प्यार का इजहार करने का सोचेंगे, तब तक अनुज अनुपमा का रिश्ता परवान चढ़ चुका होगा। इस बात पर आप गलत हो बीजी। दीपू जी ऐसा कुछ करने जाएंगे तो आप अपनी बेटी और दीपू जी एक अच्छी दोस्त खो बैठेंगे। इसलिए इस टॉपिक को यही क्लोज कर दीजिए। काव्या डिम्पी का कन्वर्सेशन अच्छा लगा, लेकिन काव्या तुम यहाँ पर गलत हो कि वनराज कुछ नहीं करेगा। वो बहुत बड़ी प्लानिंग करके बैठा है। अनु आध्या के लिए कितने प्यार से दलिया बनाकर लेकर गई। बताओ कौन किससे मैनर्स की बात कर रहा है। कान में हेडफोन लगाकर ये रहती है तो क्या ही सुनेगी कि दरवाजे पर कौन दरवाजे पर है। आध्या की स्कूल बंद है क्या? वो सिर्फ दंगे फसाद वाले दिन ही स्कूल जाती है। बदतमीजी को टीन एज का एज या पैनिक अटैक का नाम लेकर कवर करना टोटली रॉन्ग है। इस बदतमीज में श्रुति का ही हाथ है। छोटी को बदतमीज श्रुति और अनुज ने ही बनाया है। बच्चे को एक लिमिट तक पैम्पर किया जाता है। इसकी बदतमीजी बहुत ज़्यादा दिखाई है। अनुज आज भी अनु की कितनी केयर करता है, अच्छा लगा है। एंड वो डायलॉग आध्या के लिए लाया हूँ। अरे ये दोनों सारी दुनिया की गलती अपने सर क्यों ले लेते हैं? क्योंकि दोनों को ही महानता की बीमारी है। श्रुति को गोली बाई चांस लगी थी, वो टारगेट नहीं थी। वो भागकर खुद बीच में आ गई। जबरदस्ती के गिल्ट में नौकरानी बनना है अनु को। अनुज का कहना कि हमारी बेटी के लिए लाया हूँ, श्रुति के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आज का रिव्यू, अब मोगरे के फूल नहीं महका पाएंगे अनुपमा के मन को। अनुज को ये करना होगा। अनुज को अपनी गलती का अभी तक एहसास नहीं है। आज भी यही बात आती है कि ये जो अनुज आज कह रहा है वो 5 साल पहले क्यों नहीं कहा। चलो उस वक्त गुस्सा था, उसके बाद भी नहीं कहा। और आज अगर श्रुति ठीक होती और छोटी को ऐसे पैनिक अटैक आते, क्या तब भी अनुज अनुपमा को बुलाता, या श्रुति के डर से ऐसे ही बैठा रहता जैसे कि 4 साल पहले बैठा है। अनुज खुद के लिए कभी माया तो कभी श्रुति करता है, पर अनुपमा की किसी से बात कर ले तो जलन होती है। क्यों? अगर अनुज अनुपमा और दीपू जी के लिए ऐसा सोच सकता है तो फिर वनराज तो क्या ही कहे। वो तो पैदा ही इसलिए हुआ है कि वो अनुपमा को बदनाम कर सके। और सही कहा आज आपने कि उस दिन अनुज ने बहुत कुछ अनु को कह दिया था। बैगेज, तुम्हारे 26 साल का प्यार, उससे तुम्हारे बच्चे। लेकिन आज भी अनुज को इस बात का एक रत्ती भर भी एहसास नहीं है कि उसने क्या कहा। अनु कैसे उसे माफ करे और कैसे उसके करीब आए। जो उसके मन पे जो घाव लगा है वही अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। इसलिए आज अनुपमा अनुज से उतनी नहीं जुड़ पा रही है। जब अनुज को दिल से एहसास होगा और खुद की बातें याद करेगा कि उसने अनु से क्या कहा है, तब जाके शायद कुछ वो खुल के और तब गिल्ट फील करे और अनु से माफ़ी मांगे कि मेरी गलती थी। लेकिन ऐसा पॉसिबल लगता तो नहीं है कि होगा। क्यों अनुज सब कुछ भूल गया है? क्यों उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है आज भी? और जब क्लोजर के टाइम पे भी उसने यही कहा था कि मैं गुस्से में था, इसलिए मुझसे वो सब कुछ मुझसे बोलना हो गया, वो सब कुछ बोल दिया मैंने। लेकिन इस गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम चली जाओ। क्यों भाई? गुस्सा आपको ही आ सकता है, अनुपमा को नहीं। और अनु को इसलिए आज इतना दर्द है और वो घाव नहीं भर रहा है क्योंकि उसने अनुज को भगवान माना था, भगवान का दर्जा दिया था। वनराज से एक तरफा प्यार था उसका और अनु एक तरफा प्यार था। लेकिन फिर भी जब उसे उस प्यार का एहसास हुआ, उसने माना और उसने दिल से प्यार किया अनुज से। लेकिन अनुज ने क्या किया? आज भले किसी को भी बुरा लगे, लेकिन एक बात कहूँगी कि जो 26 साल
अनुपमा ने जो दर्द सहे वो दर्द अनुज ने 3 साल के अंदर दे दिए। मानती हूँ प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन प्यार में जब जानता था कि उसके साथ में इतना बैगेज है, फिर भी तुमने अपनाया उसे। फिर क्या हुआ अब देखते हैं। अब ये तो सीरियल है, स्टोरी चलती रहेगी। सब सस्पेंस तो आज तक क्लियर हुए नहीं, तो अब पता नहीं आगे भी क्लियर करते या नहीं करते। लेकिन मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अनुज ये भी जानता था कि वो एक दादी से शादी कर रहा है, फिर भी उसने तो हिम्मत करके पूरी दुनिया के सामने प्रपोज किया। लेकिन आपने क्या किया, देखते हैं अब आगे क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते, और जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा उनको सबको थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू जी, बाय। बहुत सही है ख्याति जी, क्योंकि ये तो आप भी मानती हैं, मैं भी मानती हूँ, और बहुत सारे दर्शक मानते हैं कि आसान नहीं होता है माफ करना। माफ फिर भी मुंह से बंदा कह देता है कि चलो माफ कर दिया, हालातों को नॉर्मल बनाती हैं लेडीज अपने अपने घर में कि चलो ठीक है बोल दिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, चलो आगे चलते हैं। बहुत सारी अनुपमा हैं जो अपने अपने घर में इन बातों से समझौता करती हैं जो उनके दिल को लगती है। तो यहाँ पे अनुपमा ने जो एक बार समझौता नहीं किया अपने अनुज के इस जो रवैये से, तो वो सही था। आज भी उसके दिल में वो चुभन है। तो माफ करना अनुपमा के लिए इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो उसको ये मानना ही नहीं है कि अनुज ऐसा कह सकता है। वो खुद ही माफी मांगते जा रही कि मैंने गलत किया। तो अनुपमा का किरदार थोड़ा अलग है, जो हर किसी को समझ आए ये जरूरी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा नहीं लगा। आज का एपिसोड देख के बहुत दुख और गुस्सा भी बहुत आया। आज के एपिसोड के बारे में बोलने से पहले मैं कल का एपिसोड के बारे में बोलना चाहती हूँ। वनराज की शर्त मान के टीटू बहुत बुरी तरह से फंस गया। वो वनराज की जाल में फंस गया है, और जिस तरह से उसने शर्त रखी है कि घर जमाई बनने का, और दूसरी शर्त है जो भी मैं कुछ कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। ये जो दूसरी शर्त है वो शादी से पहले ही वनराज इम्प्लीमेंट करेगा, और इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी है कि वो जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बोला था कि वो अंश को भड़काएगा टीटू के खिलाफ, जिसे अंश टीटू से नफ़रत करे और पापा बनाने में उसे माने ना। और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है डिम्पी और टीटू के बीच में गलतफहमी पैदा करने। तीसरी है कि अंश को ही मोहरा बनाए। जिस तरह से वनराज ने बोला है मैं जो भी कहूँगा वो करना पड़ेगा, वो ऐसा कुछ टीटू से करवाए जिससे अंश को कुछ नुकसान होए। इसे देखते ही डिम्पी खुद ही टीटू से शादी करने के लिए मना कर देगी, और वनराज का जो प्लान था वो कामयाब हो सकता है। बा को बापूजी कितना भी समझाए, बा अपने बेटे के साथ ही रहेगी। जब भी मौका मिले वो बेइज्जती करने में और ताना मारने में चूकेगी नहीं। वो अनुपमा और अनुज को ही नहीं छोड़ी। ये टीटू क्या चीज़ है। अभी तो डिम्पी बहुत खुश है, पर आगे बहुत ड्रामा होएगा शाह हाउस में इनकी शादी के वजह से। और यहाँ बीजी और दीपू की बातचीत, आज मेरे को बीजी की बात अच्छी नहीं लगी। बीजी दीपू को क्यों फोर्स कर रही है कि वो बात बता दे।
दीपू जो बोलना नहीं चाहते हैं उन्हें फोर्स करके बुलवा के बीजी ये अच्छा नहीं कर रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें अगर दीपू ने ये बात कह दी, वो पहली जैसी दोस्ती तो रहने से दूर, पहली जैसी दोस्ती नहीं रहेगी। उसे अच्छा है दीपू अपने मन पे ही रख दे, उसमें कुछ बुराई नहीं है। और यहाँ अनुज के घर में जिस तरह बदतमीज़ी से आद्या बर्ताव करती है उसे देख के बहुत बुरा लगा। और इन दोनों बाप बेटी को शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस ही है, जो कुछ चीज़ अपने हिसाब से याद है और जो याद रखना क्या था या याद करके पछताने का था वो उन्हें याद ही नहीं है। जैसे रूम पे मोगरा रखना उसे याद है कि अनुपमा को पसंद है, और यहाँ आद्या खुद ही गलत है, हेडफोन डाल के बैठी है और अनुपमा को सुना रही है मैनर्स के बारे में। खुद को तो एक बेसिक मैनर्स भी नहीं है, बड़ों से कैसे बात करते हैं। और श्रुति का तो बहुत सस्पिशियस है, वो शायद इसलिए ही मेकर्स दिखा रहे हैं कि हम व्यूवर्स कंफ्यूजन में ही रहे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लास्ट में शायद वो पूरी तरह नेगेटिव ही कर दे या पॉजिटिव कर दे। अभी कंफ्यूजन में ही रखेंगे कि हम सोचते ही रहे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और यहाँ तोशु बदतमीज़, नालायक, एक्सेट्रा 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 जिस तरह से माँ के बारे में बोलता है उसे तो कहीं जाके डूब मरने का है। इस जैसे नालायक बेटे रहने से बे औलाद रहना अच्छा है। और केंजल किस लिए इसे झेल रही है समझ में नहीं आ रहा है। इस जैसे इंसान को कैसे पति मानती है और परी को इस तरह से इस जैसे बाप की क्या ज़रूरत है समझ में नहीं आ रहा है। ये कब अपना सेल्फ रेस्पेक्ट रह के उसे तो छोड़ देना चाहिए तोशु को। तोशु जैसा इंसान इन लोगों को डिज़र्व ही नहीं करता है। आज के लिए ही इतना ही मैम, थैंक यू। सही कहा था आपने राधिका जी, और कहानी अब इसी तरफ ही बढ़ती नजर आ रही है कि अंश को वनराज शाह मोहरा बनाएगा, क्योंकि वनराज शाह को कभी भी बच्चों की जो है साइकोलॉजी कभी समझ में आई ही नहीं है। क्योंकि जब समर छोटा था तो उसको बहुत बेइज्जत करता था, उसके मन में चीजें बिठा दी थी। जब ये आध्या थी तो इसको भी कुछ कई तरीकों से वो टोंट करता था बच्ची को, और बा को भी ये चीजें समझ में नहीं आई। तो अंश को लेके वो इतना पॉजेसिव है कि अंश को मोहरा बनाए, ये कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं होगी। तो सही है, आपका रिव्यू बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से आपने समझाया है, तो थैंक यू सो मच। ये थे हमारे आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर है 9833155523 इस नंबर पे, और बनिए हिस्सा अनुपमा के HS कम्युनिटी की आवाज का। मगर ये इस वीडियो में आने के लिए आपको पहले HS कम्युनिटी का मेंबर बनना पड़ेगा, वो जरूर आप बनिए, फिर आपकी जो ऑडियो है या वीडियो है इस वीडियो में शामिल की जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.